Hello, everyone. Good evening. Yes, good evening. Good evening. Astha, Ayushi, Bhumi. How are you all doing in this chilly weather? Yes. Just a quick thumbs up as to if I'm audible, visible, so that we can proceed. Good evening, Nidhi. Good evening, Vani. Yes. Thank you for confirmation. Wonderful. Good evening, Bhumi. Perfect. So I'm believing a lot of people are still joining in. So we'll keep the ball rolling, right? And before we delve deeper into the verbal section today, I'm hoping you know at least we're going to do VARC section of CAT, specifically CAT and all the other management exams today. So I'm hoping before we delve deeper into that, let's know each other a little bit, right? So just a quick introduction of on your part will be helpful. Where are you from? What do you do? Or which course are you pursuing? Any and which city you're from? That would be a wonderful information to start with. Yes, just a quick, small, basic introduction in the chat box would help. And then probably I'll tell you something about myself. And then we can go and proceed with our VRC section of CAT. Yes? Sounds good? Good evening, Janvi. Good evening, Prem. Good evening, Ayushi, Astha. BBA second year. Okay. BBA second year. Okay. BCom honors. BBA. Okay. Second year. BBA third year. Okay. From MP. Okay. From Jodhpur. Okay. Nice. We have people from a lot of different cities. Okay. Pretty beautiful cities. And I'm also from one of the beautiful cities in the country. I'm from Ahmedabad. So I'll also tell you something about myself later on. But before that, something about you. Okay. Jodhpur. Wow. Okay. Ujjain. Wow. Okay. Spiritual enough. Bhatinda. Okay. Okay. Wonderful. Perfect. So Gwalior, Jamshedpur, Varanasi, Jabalpur. Okay, that's wonderful and amazing for starters. Okay, and we'll keep this going. We'll keep these conversations going ahead in the same manner, right? But before we BSc honors, fair enough, fair enough, fair enough. Okay, Prem. Thank you. Thank you, all of you, for just being so quick in responding, being so proactive. That's exactly the quality that managers should have. Okay. So now that you are going in a field like management, you have to, behave like one. You have to, speak like one, and you have to be proactive like one. So you've already started the third step, I believe, and the first two will follow, right? So I'll also tell you something about myself later on. I believe a couple of people will still be joining in. So I'll be telling you something. Let's first hear about what you are here for, or what are we going to do now on in the next whatever time we are together, right? चलिए. So first of all, tell me what exactly. अभी आप मैंने बता तो दिया ही है, लेकिन आप मुझे बताइए हम क्या पढ़ने वाले हैं. अच्छा, what are we going to study? Hmm. Yes, yes, yes. Just a quick guess. Math. Wow, I'm so happy someone thinks that I can teach math. Thank you, Ayushi. Astha, okay. Yes, what are we going to study? English. Okay, okay. Acha, did you know this that or I revealed it or you guessing it? I want to know the answer. Are you guessing or do you already know? Logical reasoning. Okay. Mm-hmm. Okay. It's a guess. Okay. Wow. I'm very happy if someone guesses that I'm a math faculty. I wish I was. Okay. Fair enough. Chali. So today we are going to discuss about CAT as an exam in general, of course, and also about VRC section specifically with related to the management exams, right? Acha, how many of you have seen the CAT 2024 paper? Just a quick thumbs up.
How many of you seen the CAT 2024 paper? No? It's okay if you not seen. Just write a no or a yes. Not yet, not yet. Fair enough. Not a problem. Okay, okay. Fair enough. Acha, so tell me how many questions are there in each section in CAT? Acha, first of all, tell me how many sections are there? How many sections are there in the exam? 3. Wonderful, wonderful. Very good. Okay. The paper starts with which section? Just a quick quiz. Paper starts with which section? Paper starts with? Paper starts with? Okay. Paper starts with VARC. Absolutely. Okay. Paper starts with VARC. Then we go towards logical reasoning and data interpretation, and then we move towards quantitative aptitude. So these are the three major sections: VARC, LRDI, and QA. Right? So these are the three major sections. Now we are going to be dealing with the first section. आप पेपर खोलते ही आपके सामने जो सेक्शन आता है, आज मैं वो पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है? क्योंकि when I also open my CAT paper, the first section, I'm so relieved, the first section is verbal. Right? चलिए. अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट इज वीआरसी. आप क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर? अच्छा, क्वांट में तो हमें पता होता है कि हम एरिथमेटिक पढ़ेंगे ना, नंबर्स पढ़ेंगे, परसेंटेजेस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, लॉट ऑफ थिंग्स इन क्वांट. एलआरडीआई में हम ऊपर से ऑन द कॉन्ट्ररी सीरीज पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, पजल्स पढ़ते हैं, एनीथिंग दैट हैज टू गो विथ योर लॉजिकल ब्रेन. इंग्लिश में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या पढ़ने वाले? अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डज इट रिंग अ बेल? डज इट रिंग अ बेल? Yes. Is it something that you've done before? Is it nostalgic? स्कूल में आपने अनसीन पैसेजेस किए थे? आपने अगर 10th बोर्ड्स किया है, एटलीस्ट मेरे 10th बोर्ड्स में तो मुझे अनसीन पैसेजेस आते थे, एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने भी किए होंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? आप बोल रहे हो मैम हमने आरसी तो कर रखे हैं, और आरसी में तो क्या ही पढ़ा लोगे आप, उसमें तो रीड करना है और आंसर ढूंढना है. राइट? व्हाई एम आई हियर? टेल मी. चलो, आपने दूसरा हिस्सा डिकोड किया, रीडिंग कॉम, VARC पूरा नाम है सेक्शन का. आपने पीछे का हिस्सा डिकोड किया है, विच इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो आगे का हिस्सा क्या बोलता है? VA का मतलब क्या होता है? व्हाट इज VA एज अ वर्ड? VA का मतलब है verbal ability. Very good. Okay, verbal ability. So verbal ability means it will specifically, just a second, will waiting room. पेपर स्टफ होता है, न्यूज़पेपर्स रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ओके, वानी इज ऑलरेडी फिगर्ड आउट. गुड. यस. सो VA stands for verbal ability and RC stands for reading comprehension. These are the two major proponents when it comes to your CAT exam. ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो दूसरा हिस्सा है, अगेन मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑफ द पेपर, मैं अभी आपको पेपर पैटर्न भी बताती हूँ. व्हाट इज द पेपर पैटर्न, व्हाट एग्जैक्टली आर यू एक्सपेक्टेड टू डू, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट VRC. बेसिकली आज अगर आप वापस जाएंगे इस क्लास से, तो आई विल गारंटी यू दैट यू विल एटलीस्ट नो द all the important parameters of the VRC section of any management exam. I'm not just talking about CAT, क्योंकि CAT is one of them. CAT सबसे बड़ा है डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारी दूसरी भी एग्जाम्स हैं. हर एक का आपको बेसिक फंडा, बेसिक what do you say, information पता होना चाहिए. Right? So I'm just sharing my screen and I will pen it down for you. I'm going to explain it thoroughly. If you want to take notes, just be ready with a pen and paper so that we go ahead. Okay? अच्छा, how many of you have this goal? I'm sure आप सबने IIM का सपना तो देखा है. कौन सी IIM जाना चाहते हैं आप? Before we delve deeper, मुझे बताइए कौन सी IIM जाना चाहते हैं? Just a quick message in the chat box. बैंगलोर. अच्छा, अहमदाबाद नहीं, बैंगलोर. ABCLK. ओके. अहमदाबाद, इंदौर. ओके, वेरी गुड. ओके. अब आपका ये जो आंसर है ना, इसको अपने दिमाग में ना रिकॉर्ड कर लो. रिकॉर्ड दिस आंसर दैट यू हैव गिवन इट टू मी टुडे. राइट? जिन्होंने अहमदाबाद नहीं बोला है, आई डोंट नो व्हाट आर योर रीजंस. आपकी प्रोफाइल्स शायद नहीं है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन आपने अहमदाबाद नहीं बोला है. या तो सिटी अच्छा नहीं है. ठीक है. बिकॉज आई एम अहमदाबाद, इज आई एम अहमदाबाद, राइट? नो मैटर व्हाट you say.
Okay, so there could be a lot of reasons. I guess profiles की, हाँ, अगर profiles भी important होती है उसके बारे में हम लोग last 10-15 minutes में बात करेंगे. You tell me, you ask me questions about how could your profile be improved. By the way, जिनको नहीं पता है, CAT में, so CAT का कोई भी IIM CAT का 70% स्कोर एक्सेप्ट करता है और बाकी का 30% इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोफाइल. प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल इज योर 10th, योर 12th, योर कॉलेज ग्रेजुएशन एंड योर सर्टिफिकेट्स, आपके एकेडमिक, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर कोर्सेज, बेसिकली आपने पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के साथ साथ आपने जो भी एक्स्ट्रा किया है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल, राइट? तो जो बेस्ट, एटलीस्ट ब्लैक आई जो हम बोलते हैं, ब्लैक आईज, राइट? ब्लैक आईज में आती है बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोईकोड एंड इंदौर, राइट? एंड एस अभी शिलोंग को भी गिन रहे हैं ये लोग. सो बेसिकली 7, जैसे हम बोलते हैं ना आईवी लीग, वैसे इंडिया की आईवी लीग्स अगर हम बात करें तो ये 7 कॉलेजेस बन चुकी हैं फॉर मैनेजमेंट. एंड इनके क्राइटेरियाज के अंदर यू हैव 30% ऑफ वेटेज फॉर योर प्रोफाइल ऑल्सो. नाउ प्रोफाइल इंक्लूड्स व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इफ यू वांट टू गेट योर प्रोफाइल असेस्ड, अगेन प्रोफाइल असेस कराने से एज सच कुछ फायदा नहीं होगा, बट येस यू कैन आस्क. अगर आपको लेट्स से कुछ कोर्सेज करने चाहिए अपनी प्रोफाइल को एनहांस करने के लिए, तो नाउ इज द बेस्ट टाइम. अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट दे रहे हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कैट दे रहे हैं, you have at least next couple of months to improve your profile. So if you feel that you need help with assessing your profile, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अभी, आप जानना चाह रहे हैं आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, कौन सी IIM आपको एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि अगर आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है तो IIM इंदौर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. IIM इंदौर एकेडमिक्स प्योरली बहुत फोकस करता है. अगर आप डाइवर्सिटी से हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉ से हैं, आप BSc इकोनॉमिक्स से हैं, आप BA इकोनॉमिक्स से हैं, बेसिकली some unconventional field, then IIM Calcutta will take you because IIM Calcutta gives weightage to diversity. ठीक है, तो आपका ये प्रोफाइल के बेसिस पे असेसमेंट आ सकता है कि आपके कहाँ ज्यादा चांसेस बन सकते हैं. लेकिन क्या इससे हम लोग सिर्फ उसी पे टारगेट करेंगे? नॉट एट ऑल, बट यू विल गेट अ क्लैरिटी. ओके, सो that's about it. Right now let's go ahead and let's understand what your exam will look like and what are you expected to know. ठीक है, चलिए let's see. अच्छा, अब सबसे पहले हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन योर VRC सेक्शन? पहले तो हम लिख लेते हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है. दिस इज कॉल्ड VRC सेक्शन. हाउ मेनी क्वेश्चंस इन VRC सेक्शन ऑफ योर कैट? 24. Okay, 24, 22, 22, 22, 22. A lot of people are saying 22. Okay. Fair enough. Okay, no. So there are total of 24 questions. Wonderful, wonderful. Okay, so there are a total of 24 questions. Okay, and how many minutes do you get to solve these 24 questions? कितना मिनट मिलता है आपको 24 questions के लिए? 40. Very good. 40 minutes. ठीक है, 40 minutes. Very nice. अब ये 24 questions का bifurcation समझते हैं. What are these 24 questions consisting of? है ना? अच्छा बताइए, how many of you know about this? How many, किस तरीके से ये 24 questions का bifurcation होता है? क्या आते questions? अच्छा, what is the syllabus? Let's talk about that. What is the syllabus of this? VA और RC तो हो गया, ठीक है, लेकिन मार्क्स बाइफर्केशन है? ऑफ कोर्स, यस, गुड. 24 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस, ओके, सॉरी, नॉट 116, इट इज 16. जस्ट अ सेकेंड. So out of 24 questions, 16 questions are reading comprehension, right? And the rest 8 questions are verbal ability. So this is your bifurcation. Of 16 questions from reading comprehension, मतलब कितने reading comprehension आएंगे? You will get 4 reading comprehensions. Okay? 4 reading comprehensions followed by 4 questions each. ठीक है? Right? So this is your bifurcation. अब basically ये जो 4 reading comprehension आएंगे, उनका word limit क्या होगा? Guess करो. What will be the word limit of these 4 reading comprehension that will be asked in your exam? It would be ideally, very good, 600. Okay. So see, ideally it would be somewhere around 400 to 600. Okay. And this is a little
different from what used to come before, right? अगर आप देखेंगे, sorry, it's not 6,000, it is 600, don't worry. ओके अगर आप देखेंगे, सो बेसिकली आई एम गिविंग यू अ थॉरो एनालिसिस ऑफ कैट 2017 से लेके कैट 2023. अब आप बोलेंगे मैम क्यों 17 से आप 23 का एनालिसिस दे रहे हैं, व्हाई नॉट बिफोर? बिकॉज कैट बिकेम मोर रेलेवेंट. 2017 से पहले के कैट के पेपर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज फ्रॉम 2007 टिल 2017 फॉर 10 straight years IIMs did not release the CAT paper. So whatever CAT paper you find of these years in the market are going to be memory based. अब 2017 से क्योंकि हमारे पास डेटा है तो हमने उसका एनालिसिस किया है, राइट? तो अब हम I'll give you a detailed analysis of this year's paper. क्योंकि when we look at a competitive exam, please understand, आप खुद की यूनिवर्सिटी एग्जाम भी देते हैं ना, तो भी आप पास्ट ईयर पेपर रेफर करके देते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए. कैट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं. 2024 के अंदर 2023 का बैठा बिठाया स्लॉट 2 के अंदर अलजेब्रा का बैठा बिठाया क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, एंड दैट इज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू. बिकॉज कैट अगर पूछता भी है तो वैल्यू चेंज करके पूछता है, वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इट हैज हैपेंड. ओके, सो यू नेवर नो इन द नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंस, राइट? सो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर एंड केयरफुल ऑफ के पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस तो मेरे पास होना ही चाहिए हर सब्जेक्ट का. So now I'll give you past year paper analysis of verbal ability, reading comprehension. Of all these years that you have, 2017 में, ठीक है, पहले basically 3 hours का पेपर होता था. So 1 hour for every subject you used to get. So VRC भी 1 घंटे का होता था, ठीक है, and तब होते थे 30 questions, ठीक है. तो now paper has gotten to 24 questions, right? तब 5 RC आते थे, इतने सारे VA questions आते थे, लेंथ भी ज्यादा होती थी, बट पैसेजेस बहुत इजी होते थे. अगर आप 2017, 18, 19 के पेपर देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द पैसेजेस वर वेरी इजी. लेकिन अगर आप 2020 से शुरू करेंगे पैसेजेस पढ़ना, 2020, 21, 22, 23, these 4 years were the testing phases of CAT. तो यहाँ पे उन्होंने भर भर के डिफिकल्ट पैसेजेस पूछे हैं, और यहीं से कैट का वैल्यू इन द मार्केट, कैट का पूरा सिस्टम हैज चेंज्ड. तो नाउ कैट हैज बिकम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दे हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट 4 years. 2024 ऑन द अदर हैंड वाज अ सरप्राइज. मेजॉरिटी लोगों के लिए 2024 वाज अ सरप्राइज, क्योंकि ये अगेन 2018 जैसा पेपर आया था. काफी इजी साइड पे था, काफी डुएबल साइड पे था, राइट? इसका मतलब ये है कि क्या हमारे टारगेट ईयर में नेक्स्ट ईयर और वट एवर टारगेट ईयर इज, क्या आपके टारगेट ईयर के अंदर ये पेपर इतना ही इजी आएगा? यू नेवर नो. इट इज कैट. कैट इज अनप्रिडिक्टेबल. आई एम टेलिंग यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे, इट इज प्योरली अनप्रिडिक्टेबल. यू कैन नॉट से कि ऐसा ही आता है, इतना ही आता है और इतना ही पढ़ना है. ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, सो प्लीज डोंट गो विद अ वेरी प्री कंडीशन माइंडसेट. इट इज डाइवर्स. इट डज नॉट आस्क यू. कैट आपको ये भी नहीं बोलता कि मैं वोकैब पूछूंगा, आपको ये भी नहीं बोलता कि मैं ग्रामर पूछूंगा. लेकिन 2007 से पहले, सो बेसिकली 2001 से लेके 2007 तक के सारे पेपर में, इफ यू सी, देयर वर वोकैबुलरी फिल इन द ब्लैंक्स, देयर वाज डायरेक्ट ग्रामर क्वेश्चंस, देयर वर एनालॉजी क्वेश्चंस, जो उसने काफी टाइम बाद बंद कर दिया. ठीक है. दिस ईयर वन मोर सरप्राइज. 2024 के पेपर में बहुत एक बड़ा सरप्राइज था, which was पैरा जंबल क्वेश्चंस. दो जब से कैट ने एग्जाम लेना शुरू किया, which is 1993 से लेके आज तक कैट ने कभी भी पैराजंबल नहीं पूछा, ऐसा नहीं हुआ है. लेकिन 2024 के अंदर कैट ने पैराजंबल्स भी नहीं पूछे. अब मोस्ट ऑफ यू वुड बी इमेजिनिंग व्हाट इज पैराजंबल. सो पैराजंबल बेसिकली होता है, दे गिव यू 4 डिफरेंट सेंटेंसेस. आपको वो लोग 4 डिफरेंट सेंटेंसेस देते हैं जंबल्ड ऑर्डर के अंदर, ठीक है. जैसे कि देयर वाज अ किंग, देयर ही हैड अ क्वीन, क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. ये एक लॉजिकल स्टोरी है. What will they do? They will just jumble up these 4 sentences and you will have to find the right pair. आपको let's say 1 3 2 4 4 3 2 1 whatever, आपको सही पेयर ढूंढनी होती है. ऐसे क्वेश्चंस कैट ने पहली बार हटाए हैं अपने पेपर पैटर्न से. तो डज दिस मीन दैट नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट हैव इट? नॉट एट ऑल. So I am telling you, you have to know the past year paper patterns, but you do not have to assume that this is not going to come in the next year. Okay? That is not supposed to be done by CAT. आपको हर चीज पढ़ लेनी है जो आपको लगता है कि आएगी और हमें लगता है कि आएगी. ठीक है. वी विल टीच यू ग्रामर, वी विल टीच यू वोकैब. कभी कैट ने कहीं नहीं बोला है कि हम ये नहीं पूछेंगे, राइट? इट इज वेरी एब्सर्ड, इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. यू नो मर्फीज लॉ. आप लोग में से कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रीड बुक्स? मैं रीडिंग पे भी आऊंगी. Subsequently I'll come to this reading topic also. How many of you read books on a daily basis? Yes? No? Okay, one person tried to read. अच्छा. अच्छा ना, मैं I am giving you a mathematical analysis.
नॉट डेली। अब मैं आपको एक मैथमेटिकल एनालिसिस देती हूँ, आपकी एकदम आंखें खुल जाएंगी कि मैम रीडिंग क्यों, इतना रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, वी हैव 40 मिनट्स ऑफ टाइम पेपर में, राइट। अब ये जो 40 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली बाइफरकेट करके देखते हैं। ओके, सो नाउ यू हैव 400 वर्ड्स का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। आपके पास 400 वर्ड्स का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो ऐसे 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने हुए? ठीक है, 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने हुए? 2000 वर्ड्स। ठीक है, 2000 वर्ड्स। नाउ ये तो सिर्फ मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वर्ड्स गिने हैं, राइट। मैं 400 मिनिमम लेके चल रही हूँ तो भी, ठीक है, सॉरी, मैं 500 मिनिमम लेके चल रही हूँ तो भी, ठीक है। हम्म, नाउ 2000 वर्ड्स का सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉलोड बाय 16 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चंस का आप 1000 वर्ड्स और जोड़ लो, ठीक है। एंड वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चंस, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चंस, ये हो गया आरसी, और ये हो गया वीए के क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस लेंथी आते हैं। वर्बल एबिलिटी में क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बताऊंगी। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। सो वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी आते हैं, तो उसमें यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 1500 to 1000 वर्ड्स। सो टोटल ऑफ 4000 वर्ड्स इन हाउ मेनी मिनट्स? 40 मिनट्स। गिन लो, 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे? 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से? क्विकली क्विकली, मैथ मैथ। यस, हाउ मेनी वर्ड्स इन 1 मिनट? एब्सोल्युटली, 1 मिनट में यू विल हैव टू रीड 100 वर्ड्स एट द बेयर मिनिमम, ठीक है। इसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते समझना भी है, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ग्रास्प, यू हैव टू इंटरप्रेट, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑल्सो। और ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने एक बार पढ़ा और एक ही बार में आपने सारे आंसर सॉल्व कर दिए, विच मीन्स यू विल हैव टू गो अगेन टू द पैसेज, यू विल हैव टू रीड अगेन, कम बैक टू द क्वेश्चन। इतना अगर मुझे करना है, ठीक है, तो आई विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग राइट अवे, राइट। अब रीडिंग कहाँ से करना है वो भी मैं बताऊंगी, का क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। सो आइडियली हमारे यहाँ एक सिस्टम है, आई सेंड एन आर्टिकल एवरी डे, ठीक है। मैं हर रोज एक आर्टिकल भेजती हूँ। कहाँ से भेजती हूँ, कौन से सोर्स से भेजती हूँ? मैं हर रोज एक आर्टिकल भेजती हूँ उन सोर्सेस में से जहां से कैट आरसी उठाता है, और वो मार्केट में सोर्सेस अवेलेबल है। कैट ने खुद भी लिखा है वो कहाँ से पैसे उठाता है, तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट डील। अब मैं आपको सोर्सेस भी लिख के दे देती हूँ, तो आपको अगर खुद भी पढ़ना है तो यू कैन रीड आर्टिकल्स फ्रॉम देयर। आर्टिकल्स बेसिकली होते हैं एऑन एसे से। These are the major famous sources. एऑन ऐसे होता है, द साइंटिफिक होता है, ठीक है, द फिलोसफी नाउ करके देयर इज अ मैगजीन, वहां से आते हैं, ठीक है। देन यू हैव द न्यूयॉर्क टाइम्स, देन यू हैव द न्यूयॉर्कर, ठीक है। आपके पास एक और न्यूज़पेपर है द न्यूयॉर्कर। सो बेसिकली आपके पास वो भी सोर्स है कि कैट पैसेज कहाँ से पूछ रहा है। सो यू हैव एवरीथिंग विथ यू, है ना। तो अब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो एंड स्टार्ट रीडिंग। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये मेजर सोर्सेस हैं, छोटे मोटे सोर्सेस भी मैं लिख देती हूँ जहां से कैट ने एक आध बार कभी पैसेज पूछा है। द मिंट है, द डेक्कन है, ठीक है, द डेक्कन है, द स्मिथसोनियन है, स्मिथसोनियन मैगजीन है, ठीक है, राइट। सो स्मिथसोनियन। सो ये अगर आप देख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ कैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ एवरी डे आई सेंड आर्टिकल्स फ्रॉम दीज सोर्सेस ओनली। और अभी आप क्या है ना, आप कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि ये वाले न्यूज़पेपर्स या ये वाली मैगजीन्स के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि मैम ने सोर्सेस तो बता दिया, पढ़ना क्या है। अच्छा, कैट आरसी कौन से जॉनर पे पूछता है, कौन से टॉपिक्स पे पूछता है, क्या इसका हमारे पास अंदाजा है? बिल्कुल यस। मैं आपको कैट 2024 का एनालिसिस बता देती हूँ। कैट 2024 में स्लॉट 1 जो काफी लोगों का स्लॉट था। सो स्लॉट 1 के अंदर 1 पैसेज वाज इकोनॉमिक्स, 1 वाज एब्स्ट्रैक्ट, 1 वाज साइंस एंड टेक, 1 वाज साइकोलॉजी। स्लॉट 2 के अंदर सेम पैटर्न, एक इकोनॉमिक्स, एक साइंस एंड टेक, एक फिलोसफी एंड एक एब्स्ट्रैक्ट। स्लॉट 3 जो मेरा स्लॉट था, अगेन
2 एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस, 1 साइंस एंड टेक, 2 साइंस एंड टेक पैसेजेस। सो ये लास्ट ईयर का था। उसके पहले वाले साल का 2023 का एनालिसिस क्या था? स्लॉट 1 के अंदर 3 साइंस एंड टेक के पैसेजेस, 1 फिलोसफी का पैसेज। स्लॉट 2 के अंदर 3 फिलोसफी के पैसेज, 1 साइंस एंड टेक। स्लॉट 3 के अंदर चारों अलग अलग, एक लिटरेचर था, एक साइकोलॉजी था, एक फिलोसफी था और एक सोशियोलॉजी था। राइट, सो एवरी टाइप ऑफ पैसेज इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। अच्छा, अभी तक 2017 से लेके 2024 तक का अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो टोटल ऑफ 88 पैसेजेस आए हैं। 88 पैसेजेस, पहले क्योंकि 5 आते थे और अब 4 आते हैं, और स्लॉट 3 आते हैं, पहले 2 स्लॉट आते थे। तो मेरे सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल 88 पैसेजेस आज तक पूछे गए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ पैसेजेस, यू कुड से लेट्स से 42 से 43 पैसेजेस साइंस एंड टेक पे पूछे गए आउट ऑफ 88। तो आप सोचिए, ऑलमोस्ट हाफ योर एग्जाम, हाफ द कैट आस्क साइंस एंड टेक पैसेजेस। इसका मतलब आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे बीकॉम से हैं, बीबीए से हैं, बीए से हैं, डजंट मैटर, आपको साइंस एंड टेक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब आप कहाँ से शुरू करेंगे? उसके लिए आई सेंड आर्टिकल्स, और मैं बहुत ही, अभी तो बहुत ही बेसिक भेज रही हूँ, बट इन द टाइम्स टू कम, है ना, मैं कैट जैसे ही नजदीक आता चला जाएगा, वैसे वैसे मेरे आर्टिकल्स का लेवल भी बढ़ेगा एज पर द कैट। राइट, सो दैट इज समथिंग जो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी अपने हिसाब से चीजें पढ़नी है तो आई हैव गिवन यू द सोर्सेज, लेकिन आई ऑलरेडी सेंड यू, और वो आर्टिकल्स वही होते हैं जो मैं खुद पढ़ती हूँ। आई रीड इट एंड आई सेंड इट टू यू, क्योंकि जब मैं नहीं पढ़ूंगी तो मुझे उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं पता चलेगा, एंड देन ऑल्सो यू विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज इट। ठीक है, अगेन ये होता है आपका रीडिंग के टाइप टॉपिक्स। ठीक है, तो टॉपिक्स कौन से कैट पूछता है? साइंस एंड टेक, साइकोलॉजी, फिलोसफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब टॉपिक्स पे कैट पैसेज पूछता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 2022 के अंदर स्लॉट 1 के अंदर पैसेज 1 था ऑन स्टोइसिज्म। कितने लोगों ने इस वर्ड को सुना हुआ है? स्टोइसिज्म कितने लोगों ने सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस वर्ड स्टोइसिज्म? यस? नो? ओके, बहुत ही अच्छा ट्रेंडी वर्ड है ये आजकल। राइट, स्नेहा, वेरी गुड, इफ यू हर्ड ऑफ इट, वेरी गुड। सो देयर वाज दिस एंटायर पैसेज ऑन स्टोइसिज्म। जिन्होंने नहीं सुना था ना, फॉर देम इट वाज एन एलियन पैसेज एंड दे डिड नॉट अटेम्प्ट इट। राइट, सो ये है क्या, मैं ये भी बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। इट इज अ फिलोसफी, राइट, इट इज अ ग्रीक फिलोसफी, जहां पे, और ये आज के जमाने में सबसे रेलेवेंट ग्रीक फिलोसफी है। राइट, और ये पूरा आर्टिकल उसी फिलोसफी पे था, एंड दे डिड नॉट इवन एक्सप्लेन। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जैसा मैं आपको करने वाली हूँ कि अच्छा है बताया आपको ये क्या होता है, नहीं, सीधा लिख दिया, अच्छा स्टोइसिज्म इज समथिंग व्हिच इज वेरी बैड। पता ही नहीं है स्टोइसिज्म क्या है। राइट, सो द पॉइंट इज, मेरे को ये चीजें तो पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे ये कैसे पता चलेंगी? मैं पढ़ाऊंगी। सारी की सारी फिलोसफीज जिसपे कैट ने पैसेजेस पूछे हैं वो मैं पढ़ाऊंगी। सारे के सारे साइकोलॉजी और साइंस के पैसेजेस जो पूछे गए वो मैं पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री आई विल टीच यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टॉपिक्स, रेलेवेंट टॉपिक्स। अच्छा, पूरी पूरी हमें हिस्टोरियन नहीं बनना है, हमें साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें फिलोसफर भी नहीं बनना है। हमें बस उतनी थियोरीज पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही फेमस है, वो आपको पढ़ाई जाएंगी क्लास के अंदर। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा, लेट्स कम बैक टू स्टोइसिज्म। ये क्या थियोरी है? सो बेसिकली स्टोइक थियोरी ये बोलती है, एक्सेप्ट थिंग्स, है ना। उसकी एक बहुत ही फेमस कोट मैं आपको बोल देती हूँ तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि फिलोसफी क्या बोलती है। इट सेज दैट गिव मी द पावर टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज, ओके, एंड द स्ट्रेंथ टू, आई गेस द स्ट्रेंथ टू सी द थिंग्स दैट आई कैन चेंज, ओके, समथिंग लाइक दैट। एंड सेकेंडली वो बोलता है आपका बैलेंस ऑफ इमोशंस होना चाहिए। नो मैटर व्हाट यू डू, वेयर यू आर, यू शुड हैव बैलेंस ऑफ इमोशंस। यू शुड नॉट बी टू हैप्पी in happy situations and not too sad in depressing situations. So this is the philosophy of Stoicism. It was given by Zeno, or as Zen as a word, Zeno, Greek philosopher Zeno. और उसके वहां से there was a king called Marcus Aurelius, और Marcus Aurelius ने अपनी बुक है Meditations करके, जिसके अंदर पूरा का पूरा Stoicism क्या है, कैसे जिया जाता है उसको लाइफ के अंदर, वो पूरा दिखाया है। सो Meditations करके बुक है, अगर आपको पढ़नी है Stoicism के लिए, Meditations करके बुक है, उसको उठा लीजिए। इट इज अ वेरी गुड बुक, ओके। अच्छा, ये तो हो गए सारे आर्टिकल्स। इसके अलावा बुक्स भी बहुत सारी, आई कैन रिकमेंड यू अ लॉट ऑफ बुक्स, ओके। बट उसके लिए यू कैन कम इन द नेक्स्ट क्लास, और यू कैन गेट इन टच, आई विल शेयर द लिस्ट विथ यू। आपके साथ मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगी, साइंस एंड टेक में क्या पढ़ना चाहिए, अगर आप फिलोसफी पढ़ना चाहते तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, बुक्स की भी लिस्ट में शेयर कर दूंगी। बट प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। आपका 70 to 80% ऑफ द पेपर है रीडिंग पे, तो यू कैन नॉट ओवरलुक। मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम रीडिंग नहीं पसंद है, बोरिंग होता है, इट्स
इट्स ओके। आप ऐसी चीज से शुरू करिए जो इंटरेस्टिंग है। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप स्पोर्ट्स के आर्टिकल पढ़िए। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके एक टॉपिक आता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के आर्टिकल्स पढ़िए। आपको आर्ट्स पसंद है, आप आर्ट्स के पैसेजेस पढ़िए। बट पढ़ना पड़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। वीडियोस देख के चीजें समझना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, रीड करके चीजें समझना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन? यस, वेरी गुड निधि, वेरी गुड। एक्चुअली सीबीएसई के सिलेबस में तो आता था फ्रेंच रेवोल्यूशन, टेंथ 11th ग्रेड में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया गया होगा। भूमि, द बुक्स नेम वाज मेडिटेशंस बेटा, मेडिटेशंस। How to read fast while understanding. Okay. See, it is not an overnight process. Okay. Hmm. Just a second. What happened to this? Now, it is not. What happened? Hmm. Yeah. See, it is not an overnight process. आपको रीडिंग स्पीड के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चंस भी समझने हैं एंड अटेम्प्ट भी करना है। ऑल ऑफ दिस इज अ प्रोसेस, entirely it is a process, right? So gradually, to answer your question, Astha, it will increase gradually. Your speed will increase gradually. Today I can proudly say that in 1 minute I can read 250 to 300 words. Okay, and I can read the entire passage in 2.5 to 3 minutes. That is very much possible. How? Read consistently. आप सारा का सारा खाना सैटरडे को नहीं खाते हैं, है ना? सारा का सारा जिम सैटरडे को नहीं करते हैं। एवरी डे यू डू हाफ एन आवर करेंगे, लेकिन आप रोज रोज करेंगे। एग्जैक्टली यही यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैम नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, सी टाइम तो है ना? और आईआईएम जैसा टारगेट रखा है मैंने, क्योंकि मैं अगर 3.3 लाख लोगों के सामने कंपटीशन में हूं, तो मुझे 0.01% क्रीमी लेयर में आना पड़ेगा टू बी द बेस्ट इन द कंट्री आउट ऑफ द 3.3 लाख एस्पिरेंट्स ऑफ कैट। लास्ट ईयर भी उतने ही थे, इस साल भी उतने ही थे, मतलब 2023 में भी उतने थे, 2024 में भी उतने ही थे। विच मीन्स नेक्स्ट ईयर शायद उतने ही हो या उससे भी बढ़ जाए, क्योंकि फॉरेन एजुकेशन इज ऑन अ डिक्लाइनिंग स्टेज। बता देती हूँ मैं आपको मार्केट के बारे में, अगर आप न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं। फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन मार्केट इज कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल, है ना? फॉरेन, क्योंकि कोई बेस जो मेजर कंट्रीज हैं वो सारी एक्सेप्ट लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। सो जो लोग जीमैट दे के बाहर जा रहे थे एमबीए वगैरह करने के लिए, वो भी अब कैट देंगे। तो नेक्स्ट ईयर से प्रोबेबली द कंपटीशन विल इंक्रीज बट इट विल नॉट डिक्रीज, which means you will have to be in the 0.01% crowd to be in that zone. Now, again, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपने रोज आधा घंटा या 1 घंटा हाफ एन आवर आर्टिकल को दे दिया, हाफ एन आवर बुक रीडिंग को दे दिया, आई प्रॉमिस यू विद इन द नेक्स्ट 2 months यू विल बी रेडी। आप 2 महीने में कोई भी आरसी के टेस्ट में 20 मार्क्स तो आराम से लेके आएंगे। ठीक है? सो दिस इज माई गारंटी दैट आई कैन अश्योर यू ऑफ। बट या, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विदाउट इवन अ डेज ब्रेक। एक दिन भी रीडिंग में ब्रेक नहीं होता है। ठीक है? एग्जाम है चाहे कुछ भी है, राइट? ओके, सो दिस इज योर एंटायर बैकग्राउंड। अच्छा, इसमें किसी को भी डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट इन टर्म्स ऑफ सोर्सेस, रीडिंग, एनीथिंग अराउंड दिस? एनीवन? नो? परफेक्ट। Okay, wonderful. Chaliye. So now we go to our second important and consequent part. So देखिए, आरसी जो है, ठीक है, वो तो मुझे समझ आ जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होगा कि मैम समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है, समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस सॉल्व करने में कभी कभार हमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है? अच्छा, इसके लिए आप क्या करेंगे? हाउ विल यू गो अबाउट इट? सो बेसिकली ऐसा, एक तो मैंने बोला कि आई सेंड यू आर्टिकल ऑन फ्रॉम माई बिहाफ। फिर हमारी टीम की तरफ से आपको न्यूज़पेपर्स भी भेजे जाते हैं। सो आपको एवरी डे, अच्छा, जो इंसान, जो आप में से जो लोग हैं हु आर बिगिनर्स, जो रीड बिल्कुल नहीं करते हैं, आपके लिए दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। वी सेंड यू न्यूज़पेपर्स। अब अगर आप देखेंगे एवरी डे, these days English newspapers ask you for subscription, right? But we don't do that. We send you newspapers in your own groups, right? So we will be sending you newspapers on a daily basis. हर रोज न्यूज़पेपर आता है, I guess Sunday नहीं आता है। So you have to start reading those newspapers also, right? I send articles daily. Yes, Astha. Okay, I send articles daily. I guess except for weekends, I send articles daily.
ओके। एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो रोज आते हैं, तो आपके पास रोज टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा, द हिंदू आएगा, इंडियन एक्सप्रेस आएगा, मिंट आएगा, ठीक है। सो आपके पास ये सोर्सेस भी हैं। अगर जिनको एकदम डायरेक्टली इन इंटरनेशनल सोर्सेस पे नहीं जाना है, इट्स ओके, यू कैन रीड, यू कैन स्टार्ट विद द मिंट। मिंट अगेन इंडिया के हिसाब से इट इज अ गुड लेवल इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस से भी शुरू कर सकते हैं, डू नॉट वरी एट ऑल, राइट। सो द पॉइंट इज हमें रीड करना है, क्या कितना कहाँ से, वो सब मैंने आपको बताया है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, आप ऐसा टॉपिक प्लीज मत चूज करिए जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप आज से साइंस एंड टेक नहीं शुरू करिए अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है। बिल्ड दैट रेजिलियंस, बिल्ड दैट कैपेसिटी, है ना। अगर आज पीटी उषा को मैं पहले दिन से, अगर वो ट्रेनिंग करा होता, उसने पहले दिन से मैं बोलती है चलो चलो तुमको 400 मीटर रिले भागना है, नहीं होगा ना। यू हैव टू धीरे धीरे, यू हैव टू ग्रेजुअली गो देयर, यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज योर लेवल टू एन एक्सटेंट, जहां पे फॉर एग्जांपल टुडे एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस ईयर्स कैट, बाय द वे this year's 2024 का CAT results have been wonderful, and the student, again I'm giving you a real life story. Okay, there were two students, एक था जो अभी टॉपर है, right? This guy 2 days before CAT he scored 20 marks in VRC. 20 marks in VRC is ideally somewhere around 85 to 86 परसेंटाइल, ठीक है। अब ये ऑलरेडी टॉपर है, मैथ अच्छा है, LR अच्छा है, वर्बल में 86 परसेंटाइल है, कि मैं मैम है नहीं रहा वर्बल तो ही नहीं रहा। आई सेड इट्स ओके, 2 दिन है, अभी स्ट्रेस मत लो, गो टू द एग्जाम, गिव द एग्जाम। एग्जाम के दिन पे व्हेन ही केम फ्रॉम द एग्जाम, तब भी उसने मुझे फोन करके बोला मैम आई डोंट थिंक वर्बल होगा, वर्बल मॉडरेट था, बट मैं करके तो आया हूँ। और मैम मैंने कुछ 24 क्वेश्चन में से मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आई वॉज स्कैर्ड कि इतने सारे अटेम्प्ट करके आ गया। दिस गाय गॉट 99.8 परसेंटाइल इन वर्बल सेक्शन दिस ईयर, एंड ही वॉज हिमसेल्फ नॉट कॉन्फिडेंट कि उसको आएंगे। एंड द ओनली थिंग, वी विल ऑल्सो कीप अ सेशन विद हिम फॉर यू पीपल, ठीक है। एंड वो आपको खुद बताएगा सामने से कि व्हाट डिड ही डू। द ओनली थिंग दिस गाय हैज बीन डूइंग इज रीडिंग। दिस इज वन एग्जांपल जो टॉपर है। There is another example. This guy is not a topper, but he's gotten 95 percentile, right? And this is a, you know, rags to riches story, right? His name is also, I'm telling you, Mukund Singhani. I might just keep a session verbal के लिए तो मैं उसी का सेशन रखवाऊंगी आपके, listen from him उसने क्या किया है। He is from a vernacular medium, ठीक है। He was from a Gujarati, we are in Gujarat, so he is from a Gujarati medium school. He was from a Gujarati medium school. When he came for a CAT preparation journey, 1 year back he joined, okay. फर्स्ट टेस्ट उसने दिया, उसको इंग्लिश रीड क्या उसको समझना भी नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का बेसिक आर्टिकल भी वो बोलता था मैम वोकैबुलरी नहीं समझ आ रही है, ठीक है। दिस इज द डे, आई गेस डे 1 और डे 2 व्हेन ही केम टू मी एंड ही सेड मैम लगता नहीं होगा बिकॉज इंग्लिश बहुत टफ है। आई सेड कीप योर काम, रीड मोर, वी विल सी। फर्स्ट टेस्ट दिया उसने, 1 मंथ के बाद बेसिक टेस्ट होता है आरसी का, वो उसने दिया, ही स्कोर्ड -10, ठीक है। -10, नथिंग, नो इंप्रूवमेंट, पूरा वो फिर अगेन डिसअपॉइंट, मैम आपने बोला रीड, मैंने तो रीड भी कर लिया, कोई स्कोर नहीं बढ़ा। आई सेड स्टिल ओके, पे बी पेशेंट, बी पेशेंट। थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, -10 से -5 या -5 से पॉजिटिव, पहली बार एक नंबर आया, नंबर 1 नंबर, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, सेड मैम पॉजिटिव पे आ गया मैं, ठीक है। एंड देन 1 से लेकर द लास्ट ही गेव हिज मॉक, कैट के पहले जो उसने मॉक दिया आफ्टर 1 year, दिस गाय गॉट 35 मार्क्स। 35 मार्क्स इज अ 99.8 9 percentile, out from -10 to 35, okay. And he will also tell you when he sees you and when you talk to him कि मैंने exactly, मतलब वो बंदा मॉक भी नहीं देता था मुझे पूछे बिना कि मैम नेक्स्ट मॉक का वर्बल का स्ट्रैटेजी बताओ, मैं RC1 पहले करूं या RC3 पहले करूं, RC5 RC4 को देखूं भी कि नहीं देखूं, VA करूं भी कि नहीं करूं। दिस इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन दिस पर्सन हैड। मैंने बोला न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, रात एग्जाम, ही हैड हिज फाइनल एग्जाम द नेक्स्ट डे, 24th को कैट था, 25th को ही मंडे को ही हैड हिज फाइनल एग्जाम, मॉर्निंग 8:30 AM, okay. And still Saturday Sunday he has read articles that I have sent. So this is the level of madness and this is the level of dedication you are expected to have when you are coming in an exam like CAT, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप अगर इस टाइम पे मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आप डेडिकेटेड तो हैं, इस बात का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है द डायरेक्शन दैट यू आर सपोज्ड टू पुट योर डेडिकेशन एंड मोटिवेशन इनटू, एंड दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, okay. So I am seeing a lot of Mukund, this guy's name was Mukund, and I am seeing a lot of Mukunds, okay, a lot of IIM call getters and a lot of IIM converts for the next year, right? So keep up the spirit, keep that fire inside of you, and keep up the madness. Please understand, nothing will work if you do not, if you're not crazy enough to do things that no one else will do to do that, to reach there.
फाइन, ओके, चलिए, दैट बीइंग सेड, अब हम सेकंड कोर इंपॉर्टेंट एसेंशियल पे आ जाते हैं ऑफ आवर एग्जाम, विच इज आवर वोकैबुलरी। ठीक है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्टोइसिज्म अगर आपको नहीं भी पता होता, ठीक है, मैं अभी आपको ट्रिक्स बताती हूँ, इवन इफ मुझे ये वर्ड नहीं आता, ठीक है, आई वुड हैव ट्राइड टू गेस इट। आई एम सॉरी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। या, ओके, सो अच्छा, आप लोगों में से काफी लोगों को स्टोइसिज्म एज अ वर्ड नहीं पता था, इट्स ओके। गैस तो कर सकते हैं कैसे, आप बोलेंगे मैम कैसे, देयर आर ट्रिक्स, देयर आर वोकैबुलरी ट्रिक्स टू गेस वर्ड्स। अगेन, वोकैबुलरी इतनी जरूरी है क्यों, हम कंटेक्चुअल मीनिंग से भी समझ सकते हैं। मुझे कंटेक्चुअल मीनिंग आपने बता दिया, आई विल बी इम्प्रेस्ड, आई विल बी लाइक नहीं मेरे को तो आता है। But the thing is, when there is no context given, when you have to just right away attack the given word, it is easier if you know certain techniques and tricks. And I will tell you what kind of techniques are there in vocabulary also. अच्छा, आपने अभी तक vocabulary कैसे पढ़ी है स्कूल में, बताइए। How have you read vocabulary in school? Tell me. What was the way of reading or knowing vocabulary in school? After every chapter, you used to get a list of words which you had to memorize, है ना? एंड उस मेमोरी की बेसिस पे आपको याद रख के आपको पेपर में लिखना होता था। यस, वर्ड मीनिंग्स, वेरी मच नॉस्टैल्जिक, है ना? अच्छा, नॉस्टैल्जिक मीन्स व्हाट? नॉस्टैल्जिक वोकैबुलरी शुरू हो चुकी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, व्हाट डू यू मीन बाय नॉस्टैल्जिक? यस, previous memories, very good, very good, okay. So when we are talking about vocabulary, we are talking about a wholesome vocabulary. See, vocabulary में मैं आपको कभी भी, I will not tell you to memorize words because it is not possible, okay. Oxford Dictionary alone has somewhere around 1,35,000 words. Merriam-Webster has somewhere around 4,50,000 words. So in total, mankind knows 6 to 7 lakh words. Okay, so 6 to 7 lakh words may say to remember even half of it does not make any sense. So what am I supposed to do? I'm trying to learn techniques and tricks to learn these kind of words, to at least try to guess these kind of words. ठीक है, जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल, अभी मैंने आपको स्टोइसिज्म बोला, आपको नहीं आता था, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गेस कर सकती थी क्या इस वर्ड को? यस। वो कैसे कर सकती थी, वो ट्रिक है मेरी, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। इज रॉन्ग दिस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। Yes. Is my page visible to you? All of you? Yes? Hmm. Okay. Chaliye. So I told you that there is a word called stoicism, right? अब मुझे वर्ड नहीं पता. Let me try to guess it. ऐसा क्या है इस वर्ड में जो आपने कहीं पहले देखा हुआ है? Tell me what is that you have seen in this word which you've seen before also. तोड़िए इस वर्ड को, दो हिस्सों में तोड़ के देखिए. Very good. ISM. चलो, स्टोइक नहीं देगा मैं. Very good. ISM, ठीक है, ISM और CISM, ठीक है, आई हैव सीन दिस समवेयर, है ना, कहाँ देखा है मैंने, बताइए. गिव मी वर्ड्स विद ISM, गिव मी मोर वर्ड्स विद ISM. CISM, यस, गिव मी मोर वर्ड्स विद ISM और CISM. यस. मटीरियलिज्म, वेरी गुड. क्लासिज्म, कास्टिज्म,
racism, feminism, yes, industrialism, criticism, Jainism, Buddhism, Hinduism, Sikhism, right? So many isms. Yes, we've seen that. Socialism, very good, very good. A lot of words. So basically, कुछ तो common होगा, है ना? Nepotism, very nice. So there has to be something common that we all agree कि मैम इतना तो सिमिलैरिटी नहीं, कुछ तो कॉमन होगा, बिल्कुल है. तो ISM जो है that comes from a Latin origin and this word means to side with. इसम बोलते हैं टू साइड विथ. अच्छा, किसकी साइड लेना? आगे वाले वर्ड की साइड लेना. अब क्रिटिसिज्म टू साइड विद अ क्रिटिक, जैनिज्म टू साइड विद अ जैन, बुद्धिज्म टू साइड विद अ बुद्धा, हिंदुइज्म टू साइड विद अ हिंदू. सो इट्स इजी, है ना? मुझे बस आगे वाले वर्ड की साइड लेनी है. अच्छा, आप ये वर्ड नहीं समझे थे, ऐसा भी याद रखो, जिस भी वर्ड के पीछे ISM आता है, इट इज ऑलवेज अ थियोरी. इट इज ऑलवेज अ थियोरी. इतना तो पता चल गया मुझे. नाउ एम आई विल आई बी एबल टू गेस इट? यस, एब्सोल्युटली यस. सो दीज आर द काइंड ऑफ टेक्निक्स दैट यू आर सपोज टू नो, राइट? एंड अभी हम लोग एक थ्योरी शुरू करने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक थ्योरी. सिट विथ योर बुक एंड पेन बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ गुड नोट्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू टीच यू अ थ्योरी. और ये थ्योरी के बेसिस पे आप एक साथ 50 वर्ड्स पढ़ सकते हैं. एंड आई एम नॉट किडिंग, 50 वर्ड्स एट अ टाइम. एंड एवरी टाइम यू स्टार्ट विद दिस थ्योरी, क्योंकि वर्ड्स बहुत ही रैंडमली बिखरे हुए हैं. अगर मुझे उनको एक साथ लाके पढ़ना है तो आई हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी, आई हैव टू हैव अ थ्योरी. And that is what something I'm going to teach you today. Okay, so let's start. Are you all ready? Are you all ready? Thumbs up. Wonderful. Okay, chaliye chaliye, nice. चलिए, सो दिस इज थ्योरी एंड दिस यू नॉट फाइंड ऑन एनी ऑनलाइन सोर्स. आपको ये कोई गूगल पे थ्योरी नहीं मिलेगी, ये मेरी खुद की बनाई हुई थ्योरी है. ठीक है, एंड बाय द वे, हम ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा लेक्चर आ चुके हैं एंड यू डोंट इवन नो मी, राइट? सो बिफोर हैविंग दैट सस्पेंस ऑफ थ्योरी, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. सो आई एम Nandini Hirani. I am the cat anchor at eCoaching. So I anchor the entire cat division, including online, offline. So, and I have done my bachelor's in law, my master's also in law, and one of my master's in business communication. I am teaching CAT since last 5 years. I have taught a lot of competitive exams like GRE, GMAT, UPSC, prelim English, SSB banking, SSC Army, and all the international exams, including TOEFL, GMAT, and all. I have, again, to talk about my own CAT percentile. To be honest, my highest CAT percentile in terms of VRC is 99.5, and I hope to get 100 percentile someday with you all. Okay, I'm also an internationally certified corporate trainer, so I teach soft skills and basic etiquettes at Nirma Institute in Ahmedabad, and also at Nirma University in Ahmedabad, and also at PDPU, which is Pandit Deendayal Upadhyay University in Ahmedabad. So this is my background. Okay, chaliye. Now let's jump on to our theory. Okay, so that we now know each other also, and now we are going to create that best theory from within ourselves. Oh, nice, Nidhi. Which department you are in PDU? I teach aptitude to engineering. अच्छा, BBA में हो? We go to engineering. Yeah. आई टीच अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स. मैं PDU में भी इंजीनियर्स पढ़ाती हूँ, निरमा में भी इंजीनियर्स पढ़ाती हूँ. हम्म, ठीक है. थैंक यू आस्था. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी. श्योरली I'll let you know. I will surely meet. चलो, the name of the theory is grasp. Grasp. What do you mean by grasp? Grasp का मतलब क्या होता है? फटाफट से लेमन लैंग्वेज में, what do you mean by grasp? लर्न, यस. एब्जॉर्ब, इनटेक, इम्बाइब, है ना? बहुत सारे वो मीनिंग्स होते हैं इसके. तो लेट्स सी ग्रास्प को कैसे हम डिकोड करते हैं और कैसे ग्रास्प करते हैं. अच्छा, बिफोर आई डेल्व डीपर इनटू दिस, मैं एक वर्ड लिख रही हूँ स्क्रीन पे, आपको मुझे उसका मतलब बताना है. ठीक है, चलिए लेट्स सी.
लास्ट वाला लेटर तो बेचारा छुप ही गया. Yes, this is the word. Tell me the meaning of this word. Anyone? This is a word, by the way. This is a word, by the way. So the word is floxy, nosy, knee, hilly, illification. Floxy, nosy, knee, hillification. It's like a tongue twister also. Yes. So this is the word. Okay. Acha, now again tell me what is the common thing that you've seen? What is there in this word that you've seen before? Tell me. Hmm. केशन, फिकेशन, शन, फिकेशन देखा होगा, केशन देखा होगा, शन देखा होगा, राइट? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. फिकेशन, अच्छा, गिव मी वर्ड्स विथ फिकेशन, 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 केशन, शन, yes, 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 very good. Give me more words with shun and fication. Flow, okay, okay. Classification, communication, connection, simplification, emancipation, personification. Wonderful. Okay. So there has to be again some root in this. There has to be some connection with these words. Absolutely. Fication shows what? Imagination. Very good. Very good, Krish. Keep giving words, keep writing words in the chat box. This will just keep you in the process. Very good. Okay. Chaliye. So fication means what? Also comes from a Greek word which means a process. Process of anything. Simplification means a process of simplifying. Okay. Chaliye. Very nice conversation. Yes, continuation. Very good. Acha, so what does this mean? That I'll tell you. But there is some similarity, even though this is such a big word, there is still some root that you are able to know and understand. So how come do you think that you will not be able to get a lot of words otherwise? Okay, let's see. So this word means, this word is not a positive word. Okay. It means a slight moment of or a slight level of discomfort. This is used by Shashi Tharoor in one of his speeches at Oxford. Okay. So floxinocin hilipilification. Asha, tell me, will such kind of a word be asked in your exam? Will such a word be asked in your exam? Yes or no? Yes or no? No, absolutely not. See, cat को नहीं फर्क पड़ता है कि आपको इतने heavy words आते हैं कि नहीं आते हैं. Cat doesn't care if you know these kind of heavy words or not. But what does cat care about? A word like this. Sorry. A word like this. Cat को इससे फर्क पड़ता है. अच्छा, इसका मतलब बताइए. इसका मतलब बताइए. What does this mean? Ideal? नहीं. So see, there is a difference. Ideal, idle, idle और ideal. There is a difference. ये सारे सेम सुनाई देने वाले वर्ड्स है, लेकिन सेम कोई भी नहीं है. Yes, yes. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? What does ideal mean? Ideal का मतलब क्या होता है? What does ideal mean? Yes, perfect. Benchmark. Very good. Very good. Ideal का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना, she's an ideal partner. She's an ideal friend. Ideal मतलब perfect. Someone you look up to. Okay. Good. Yes. IDOL, ideal का मतलब क्या होता है? IDOL, ideal. Very good. Very nice. So ideal का मतलब होता है a मूर्ति, statue. Okay. And secondly, a role model. So there are two meanings, role model and a statue. Very good, Mehak. Very good. And third is idle. Idle का मतलब free. ठीक है? Free. Yes. Now we are talking about ideal. Okay. It's a different word. It's not in the same family. Acha, let me use it in a sentence. Okay. So it means that, okay, it goes like, she was idle when she was promoted. She was feeling idle when she was promoted. What do you think? Guess करो. Very good. Happy. Yes. कितना बेसिक वर्ड है, कितना बेसिक वर्ड है ना? और हमें पता ही नहीं है. आप कभी अपने दोस्तों को जाके बोलो, आई एम फीलिंग वेरी आइडल टुडे, वो यही उन्हें यही लगेगा आप एकदम फ्री बैठे हो आज.
है ना, IDYLL तो पता ही नहीं है हमें, दो इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट इन अ वेरी बेसिक वर्ड. सो द पॉइंट इज कैट को इससे फर्क पड़ता है कि आपको बेसिक वर्ड्स के अच्छे मीनिंग्स पता है कि नहीं पता है. सो वो आपसे फ्लॉक्सी नॉसिन हिलिपिलिफिकेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे आइडिल पूछेगा, और उसने पूछा है. A lot of passages in cat have asked this word ideal, which means it is focusing more on the base good meanings of the basic words that you use in everyday life. तो हम वही करेंगे, हम जो कैट को चाहिए वही सीखेंगे, बिल्कुल राइट. सो अभी हम लोग थ्योरी पे जाएंगे, वेयर आई विल टेल यू कि क्या एग्जैक्टली आपको करना है व्हेन इट कम्स टू योर वोकैबुलरी इन कैट. ठीक है, चलो लेट्स फटाफट से स्टार्ट विद द थ्योरी. ओके, चलो लेट्स सी. नाउ G stands for groups. G stands for groups. अच्छा, anything goes where in groups. इंसान ने सोसाइटी कैसे बनाई, है ना, हमने सोसाइटी, देश का वर्ल्ड एज अ यूनिट कैसे बनाया, ग्रुप्स में बन के. सो ग्रुप्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हर चीज के लिए, इंसानों के लिए अच्छे हैं, जानवरों के लिए अच्छे हैं, और वर्ड्स के लिए भी अच्छे हैं. तो व्हाई कांट वी ग्रुप अ लॉट ऑफ वर्ड्स टुगेदर एंड रीड देम टुगेदर. ग्रुपिज्म, वेरी गुड. ग्रुपिज्म, वेरी गुड, राइट. सो हम ग्रुप का ही साथ ले लेते हैं, हम वर्ड्स का ग्रुप बना लेते हैं. अच्छा, ये थियोरी, ये वाला एस्पेक्ट ऑफ द थियोरी कैसे काम करता है. हम बहुत ही बेसिक वर्ड्स लेंगे जो हम एकदम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, है ना. जैसे कि मैंने एक वर्ड ले लिया हैप्पी, बहुत ही बेसिक है, आप हम सब यूज करते हैं इसको बहुत ही ज्यादा. ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, हैप्पी के दोस्तों को एक साथ लिखूंगी. हैप्पी के ग्रुप में तो हैप्पी जैसे ही वर्ड होने चाहिए, है ना, तो मैं उसको ग्रुप कर लूंगी. अच्छा, बताइए मुझे हैप्पी के दोस्त क्या हो सकते हैं. यस महक, yes, we are still doing G. R, but you are right about R. Yes. Good. चलिए, let's get to the word. Happy के मुझे दोस्त बताइए. What kind of words will go in Happy's group? Tell me quickly. Someone has written. अच्छा, महक, cheerful, satisfactory. अच्छे बताओ, अच्छे बताओ. Ideal जैसे words बताओ, है ना. Cheerful ठीक है. Satisfactory exactly happy नहीं होता. Joy, okay, okay, okay. जॉयफुल, ओके, ठीक है. आस्था, गुड. और गिव मी मोर गुड वर्ड्स, गिव मी मोर गुड वर्ड्स. अच्छा, व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इलेटेड. व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ वर्ड कॉल्ड exhilarated. Okay, there's a word called jovial, right? There's a word called jolly. There's a word called jocular. There's a word called jaunty. Yes. There's a word called pleasant. Very good. There's a word called feign. Feign. Pleasant. Okay, good. There's a word called gay. Right? So, all of these mean what? Gleeful. Very good. Very good. Gleeful. Okay, okay. See, the list is exhaustive. Merry. Very good, Tripti. Merry is also a good word where you can use for happy. So what did we do? What did we do here? We just wrote the similar words and we just grouped them together basically. Happy as a word, hum unit as a liya, and we grouped all the similar words with happy. That's the best thing to do. है ना? Same let's do for sad also. Let's do for sad. Happy हो गए तो sad भी हो जाते हैं, है ना? Let's see. So sad, give me good words with sad. Yes, let's try. Give me good words with sad. Exhausted, not exactly sad. Depressed, again not exactly. देखो हमें ना exact meaning चाहिए. Happy और excited exact नहीं होते, related emotions है, but exact नहीं है. Gloomy, very good. Gloomy, very good. Despair, mournful, yes. See, you guys are giving such good words. Unhappy, very good, Ayushi. Nice. Miserable, yes, bilkul. Then there's a word called melancholic. Melancholic. Yes. Then there is a word called somber. Then there is a word called despondent. Okay. Then there is a word called
Dolorous. There is a word called doleful. ठीक है? Yes. Upset. ठीक है? Sorrow. Very good. Sorrow. Right? See, so many words we wrote. Blue. Yeah, you can write that also, Astha. सो नाउ व्हाट डिड वी डू? हमने एकदम बेसिक वर्ड्स लिए जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं और हमने उसके बेस्ट वर्जन्स लिख दिए। आपको एग्जैक्टली यही करना है, ठीक है? आप रैंडम लीजिए, फॉर एग्जांपल मोटिवेटेड, एक्साइटेड, है ना, देन थॉटफुल। जस्ट टेक एनी रैंडम वर्ड दैट यू यूज इन एवरीडे लाइफ एंड मेक अ ग्रुप। हाउ इजी इट बिकम्स फॉर यू टू नो वोकैबुलरी, हाउ इजी इट बिकम्स फॉर यू टू लर्न वोकैबुलरी, है ना? यस और नो? थम्स अप। गुड टू गो अबाउट दिस ग्रुप, समझ आया? अच्छा, फटाफट से, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज डू सो, है ना, सो दैट आई कैन गो अहेड विथ रूट्स। ठीक है, हम रूट्स करके फिर वी विल स्टॉप फॉर टुडे, राइट? बिकॉज बाकी के तो बहुत लंबे हैं। सो आज हम जी करा हमने, आर करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास। बट आर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना? आई एम कीपिंग इट ऑन द स्क्रीन फॉर द नेक्स्ट 2 minutes। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, अदरवाइज आई जस्ट क्विकली टेक इट ऑफ। यस। Shall I take it off? Okay. Take a screenshot quickly or a photo if you want so that we can take it off. Otherwise also you'll find the recording. आपको ये recording भी मिलेगा, so not a problem. Okay. And also how and where you can practice these words and all from on your e-coaching portal. Okay, when you log into the e-coaching portal, once you will have a lot of material. आपके पास 150 RC of the day upload होते हैं वहाँ पे। RC of the day is a concept where every day one RC is uploaded, so you will get a fresh RC to solve on every day basis. Secondly, you will have a lot of vocabulary tests on the portal. You have a lot of grammar tests on the portal. You have a lot of verbal ability tests on the portal. Every day you will get an article in the group, as I told you, as well as the newspapers. So verbal के लिए आपको इतना सारा content मिलेगा, yes, but उसको सबको solve करना पड़ेगा, ठीक है? So this is the entire thing. चलिए, now let's go ahead with roots. This is the most interesting part when it comes to your vocabulary. ठीक है? Let's quickly see. अच्छा, मुझे बताइए, is English a new language? Is English a new language, a novel language, or is it a stolen language? चुराई गई है ना ये तो? कहाँ से चुराई है? Where has it stolen from? कहीं ना कहीं से तो चुराई है ना? तभी इतनी flawless language है, right? चलिए, where has it been stolen from? From everywhere. It has been stolen from everywhere. Greek, Latin, Spanish, French, Arabic, Sanskrit, Hindi, हर जगह से इंग्लिश ने चुराया है। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उसने अगर चुराया है तो उसने अपने वो भी छोड़े हैं, अपने बॉडी से अपने निशान भी छोड़े हैं, राइट? सो अभी आप देखेंगे, आप अच्छा, हिंदी, हाउ मेनी ऑफ यू रेड हिंदी इन योर 10th स्टैंडर्ड? कितने लोगों ने हिंदी पढ़ी है 10th में? मेजोरिटी ऑफ यू, है ना? मेजोरिटी ऑफ यू, यस। यस, वेरी गुड। सो हिंदी में आप लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ा था? हैव यू रेड संधि विच्छेद इन हिंदी? वेरी गुड। संधि विच्छेद क्या था? यू हैड वन वर्ड, आपको उसको तोड़ना होता था और उस वर्ड के दो हिस्से करके उन्हें समझना होता था। अगेन नॉस्टैल्जिक, राइट? फॉर एग्जांपल सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, राइट? सूर्य प्लस उदय, राइट? तो सूर्य मीन्स सन एंड उदय मीन्स टू राइज। अब आप सूर्य से भी अलग वर्ड्स बना सकते हैं, उदय से भी अलग वर्ड्स बना सकते हैं। एग्जैक्टली ये होता था संधि विच्छेद। यस और नो? यस और नो? है ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, परफेक्ट। यस। सो क्या वो हम इंग्लिश में नहीं कर सकते? हम आज इंग्लिश का संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं वर्ड्स को और समझते हैं। व्हाई नॉट, है ना? तो इसको रूट्स बोलते हैं। सो लेट्स सी हाउ रूट्स कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी। ओके, चलिए, लेट्स सी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पेट्रोनिमिक। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पेट्रोनिमिक, ठीक है? अब हम रूट्स कर रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, ठीक है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पेट्रोनिमिक। अब हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है? दो वर्ड्स में।
पेट्र वर्ड आता है, हिंदी वर्ड पेट्रो, हाँ एक इंग्लिश होता है पेट्रो विच इज ग्रीक में से आता है फादर, और दूसरा आता है हिंदी वर्ड पितृ में से, हिंदी वर्ड पितृ में से ये वर्ड बन के टूट फूट के पेट्र बन गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ का जो बेचारा निशांत होता है वो वहां जाके एकदम ठीक है, पता नहीं व्हाट दे चेंज देन, यहाँ का बेचारा जोगेंद्र होता है वो वहां पे जाके जॉग बना देता है ना अपने नाम को, राइट। सो समथिंग लाइक दैट, तो पितृ का पेट्र बना दिया इन लोगों ने, राइट। सो पेट्र मीन्स और पितृ मीन्स फादर, राइट। और नॉमिक, आप देखो हिंदी में हम जब स्टोरी पढ़ते थे तब आपने देखा था ना, क्या बोलते थे वो लोग, ये नामक एक जगह थी, ये नामक राजा था, नामक। तो नामक से उन्होंने देखो क्या बना दिया, निमिक बना दिया। बात तो वही है, तो निमिक का मतलब भी क्या होता है, नेम। तो पेट्रोनिमिक मीन्स व्हाट, पेट्रोनिमिक मीन्स नेम दैट यू गेट फ्रॉम योर फादर साइड, राइट। पेट्रोनिमिक मीन्स नेम दैट यू गेट फ्रॉम योर फादर साइड, राइट, है ना। सो पेट्रोनिमिक मीन्स नेम दैट यू गेट फ्रॉम योर फादर साइड। अब आपने देखो पेट्र कहीं और भी देखा होगा, पेट्र मेरे को बताओ कहाँ देखा है, और कौन से और वर्ड में पेट्र देखा है आपने, ये रूट कॉमन है, बहुत सारे वर्ड्स में देखा होगा आपने, बताइए। हम्म, अच्छा पेट्रियार्की सुना है, पेट्रियार्की, पेट्रियार्की, हम्म, यस, पेट्री मीन्स फादर, ओके अगेन, आर्की ग्रीक वर्ड से आता है, आर्की, ठीक है, आर्की मतलब रूल। सो जहां पे फादर की चलती है जिस घर में या जिस सोसाइटी में, उसको पेट्रियार्की बोलते हैं। अगेन आर्की से बहुत सारे और वर्ड्स बनते हैं, मोनार्की, मोनार्की मतलब मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब एक इंसान जब रूल करता है उसको मोनार्की बोलते हैं, सिंगल रूल, ठीक है। फिर ओलिगैर्की, ये इकोनॉमिक्स में आपने सुना होगा ओलिगैर्की, ओलिगैर्की, ओलिगोस मतलब क्या होता है, ओलिगोस मतलब फ्यू पीपल, आर्की मतलब रूल, ओके। सो व्हेन फ्यू पीपल रूल द सोसाइटी या रूल द सिस्टम, उसको ओलिगैर्की बोलते हैं। देखो रूट्स कैसे मैच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओलिगोस मीन्स फ्यू और आर्की मीन्स रूल, ठीक है। फिर हायरार्की, ये तो सुना ही होगा, हायरार्की, हायर, एयर, एयर का मतलब क्या होता है, जो वंशज होते हैं, है ना, फैमिली के जो एयर्स होते हैं, यस हायरार्की, रूल, रूल ऑफ एयर्स को हायरार्की बोलते हैं, राइट। हमने पेट्रियार्की, पेट्र से शुरू किया था, हम आर्की पे, अब मैं मोनो से 10 वर्ड्स बना सकती हूँ, बताइए मोनो से वर्ड्स क्या बनेंगे, मोनोमियल, ठीक है, मोनोलिथिक, राइट, मोनोथेस्ट, ठीक है। फिर मोनोगैमी, मोनोटोनस, है ना, मोनोलिस्टिक, मोनोपोली, वेरी गुड वेरी गुड, मोनोपोली। अभी मैं पॉली से 10 वर्ड्स बना सकती हूँ, मैं लिथिक से 10 वर्ड्स बना सकती हूँ, मैं थेस से बना सकती हूँ, मैं गैमी से बना सकती हूँ। ये नेवर एंडिंग है, ये रूट ट्री इज नेवर एंडिंग, यू विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और आपकी जो वोकैबुलरी की फर्स्ट फ्यू क्लासेस होंगी उसमें हम रूट वर्ड्स ही पढ़ने वाले हैं, वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड कॉल्ड मिसोजिनी, आपने ये वर्ड एनिमल मूवी आई थी तब बहुत सुना होना चाहिए। मिस का मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है, गिनी का मतलब होता है फीमेल, राइट, गिनी का मतलब होता है फीमेल। और इसीलिए गाइनेकोलॉजी वर्ड आता है यहां से, गाइनेकोलॉजी, गाइने मतलब होता है फीमेल, ऑनको मतलब ट्रीटमेंट, और लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ फीमेल ट्रीटमेंट को गाइनेकोलॉजी बोलते हैं। और गाइने वर्ड आता है ग्रीक से जिसका मतलब होता है फीमेल, ठीक है, यस। सो ये रूट ट्रीज हैं, ये रूट है, और ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं, है ना, जैसे कि आप ये एक वर्ड है, ठीक है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, जो चल के जा रहा है ना, पेडेस्ट्रियन किसको बोलते हैं, जो चल के जा रहा है। तो वर्ड कहाँ से आता है, वर्ड आता है पेड, पेड का मतलब होता है पद, हिंदी वर्ड पद में से आता है, पद मतलब फीट, जो इंसान पैरों से चलता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलता है। ये पेड वर्ड से और एक वर्ड आता है जो होता है पेडल, पेडल भी आप पैरों से चलाते हो, यहाँ पे भी देखो पेड पद, ठीक है। फिर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पेडिक्योर, लड़कियों ने तो सुना होना चाहिए, पेडिक्योर, अगेन पेड पैरों की, क्योर करना, पेडिक्योर।
ठीक है? सो दीज आर द रूट वर्ड्स, है ना? और ऐसे बहुत सारे हैं। अभी तो मैंने आपको बस बेसिक 0.1% भी नहीं दिखाया है, राइट? एंड आप बताइए मेरे को, अगर आपने एक रूट वर्ड पढ़ लिया, आप कैसे उसके ऊपर 10 वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे? हमें 10 वर्ड्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस एक रूट पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? सो दिस इज द वे यू गो अबाउट सॉल्विंग रूट्स. यस, गुड इनफ, गुड इनफ, वंडरफुल, परफेक्ट. ठीक है. अच्छा, अभी मैंने बहुत ही ज्यादा खिचड़ी तो बना दी है इसके अंदर. अगर आपको फिर भी लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली विल हैव अ शीट. ओके, सो वी विल ट्राई टू डू इट ऑन दैट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, so take a screenshot if you want, otherwise it's fine, and we will do the rest of part of the theory. हमने दो हिस्से ही किए अभी, तो ASP तो बाकी है, ग्रह ही किया है, ASP तो नहीं हुआ. ठीक है, हमें ग्रह ASP पूरा करना है, right? So it is, yes, it is absolutely very much interesting, Astha, rightly said. Okay, so we are going to be doing the entire rest of the theory and then a lot of other root words in the next class that you see me. Okay, so make sure you come and attend my next class and you are there with a lot of homework. आप खुद भी बहुत सारे ग्रुप्स बना के आ सकते हैं. आप बेसिक वर्ड्स उठाइए, उनके खुद ग्रुप्स बनाइए, मेरे लिए क्यों वेट कर रहे हैं, है ना? स्टार्ट डेल्विंग दैट हैबिट, रीडिंग की हैबिट शुरू कर दीजिए, ठीक है? एंड वी विल डेफिनेटली सी ईच अदर सून. हाउ वाज द क्लास फॉर यू टुडे? जस्ट अ quick review would be good. Again, मैं अपनी तारीफ नहीं सुनना चाह रही. You can just write an honest review if you liked, not liked, anything. Okay. Yes. Amazing. Thank you, thank you, thank you, thank you. Where do you send? I send it in the group. Thank you, Astha. Helpful. I send it in the group, beta. Nidhi. Thank you, Krish. Thank you, Vani. Thank you, Janvi, Namrata, all of you. Okay? चलो, मैंने ऐसे बोला था रिव्यू लिखा तो आपको अच्छा ही लिखना है, ऐसे जरूरी नहीं है. यू कैन राइट बैड वन ऑल्सो इफ यू फील. ओके, जस्ट सेइंग. थैंक यू. Fair enough. So wonderful. Had a very good time with you all. Okay, we're all very interactive, very proactive. एकदम कैट लेवल एनर्जी आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर भी है, वो मुझे पता है, आपके अंदर भी है, वो भी मुझे पता चल गया. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू दिस एनर्जी. लेट्स कीप दिस फायर ऑन फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर द नेक्स्ट ऑल द क्लासेस टू कम टिल द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. वेरी गुड आस्था, गो ahead with that book. That's a good book. आस्था, स्टार्ट सी वहां पे भी रूट वर्ड्स ही हैं, उसके अंदर भी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रूट वर्ड्स. यू स्टार्ट विद द सेशन 1. एक्चुअली आई विल बी टेकिंग दैट इन द क्लास आल्सो. आई विल बी टेकिंग द फर्स्ट 30 सेशंस इन द क्लास. सो यू कैन, इफ यू वांट टू, यू कैन डू पोस्ट 30 सेशंस. Okay, you just read one root, try to connect those words with the root given, and then try to apply it in the exercise that they give you after the words. That will be helpful. Okay, chaliye. Fair enough. So wonderful, wonderful seeing you all. And thank you so much. See you all in the next class. Yashasvi, there is a book called Norman Louis, but आपको अभी वो नहीं करना है आपके पोर्टल. So basically when you find e-coaching पे वर्डविज करके एक बुक आती है, तो वर्डविज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. ठीक है, सो उसके अंदर भी यू कैन स्टार्ट विद रूट वर्ड्स, बट प्लीज डोंट हरी. अभी आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना चालू करिए. वोकैबुलरी पे जितने भी बुक्स हैं, एवरीथिंग आई विल टेल यू. Will the recording be provided? Vani, recording I believe will be uploaded or sent to you. I will have to confirm with the content and the portal team. Okay, but do not worry about vocabulary. That is something I will help you with. You should be definitely starting to read it. है ना? Next time आप जब आओगे तो आपको मुझे बोलना चाहिए कि मैम मैं ये articles पढ़ के आई हूँ. Right? So yeah, we'll do that. Okay, fair enough. Have a great न्यू ईयर, बिकॉज हम शायद नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो न्यू ईयर हो चुका होगा. सो नेक्स्ट 4 days 5 days जितने भी दिन बचे हैं, यू नो, लिव देम, एंजॉय. कोई बात नहीं है, टेक टाइम फॉर एंजॉयमेंट ऑल्सो. नेक्स्ट ईयर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन के साथ न्यू ईयर में आना कि एनी डे नाउ ऑन आई हैव टू क्रैक कैट. आई वांट टू क्रैक कैट and I want to be one of the alumni of the best V schools in the country. That's the resolution you should start your new year with. Okay, I will not give you any amount of false motivation, but this is something I'm also going to do. So that's something I'm asking you to do. Okay, have fresh energy to start your class, and we'll definitely meet in the new year. We'll meet next year though. Yeah. Okay, chaliye, thank you so much. Thank you, and have a great new year celebration, and have a wonderful motivating next class with me.
Okay. Bye bye. Thank you. Good night. Thank you so much.